Hello everyone, good morning. This is auspicious day 14th of April 2021 and we are here to celebrate ATL Community Day under the able guidance and supervision of Honorable Principal Sir and the foremost one, not to be forgotten, Sri Pawan Kumarji Patidar, in charge ATL Lab and PGT Physics Kendriya Vidyalaya Khargone. So friends, let us begin Community Day. And why Community Day on Ambedkar Jayanti? Because Ambedkar ji has given us this constitution. He wanted equality among all the people, even the deprived class. So ATL has a concept that the children from far off places who do not have access of equipments and laboratories, they are welcome. We at our Atal Lab at Kendriya Vidyalaya Khargone offer them to come, enjoy and see the innovations done by the teacher. As you can see, since I am sitting in Atal Lab, so even I am well versed, you can see this sanitizer machine, the demand of the hour. Everywhere you see, and it is very costly, 2,000, 5,000, 10,000. I am proud to say this is made by our children. It's a smart one. You need not touch it. Simply you put your hand and you will get the sanitizer. You will get your hand sanitized. Here is smart dustbin. आपके दोनों हाथों में कचरा है, पॉलीथीन है. अब आप ढक्कन को कैसे खोले? ये समस्या आम गृहिणी को होती है. Here, our children, I am proud to say once again, our children have made it. You just see, I just kept my hand. It is wide open for a few seconds. If I need to put something, I need not touch it. छूना नहीं है, चीजों से दूरी रखना है. Again I will show you. So these are the things our children have done. And keeping all this in view, Atal Innovation Mission is proud to celebrate the Atal Community Day at its Atal Tinkering Lab on this occasion of Ambedkar Jayanti. Children from nearby communities with no direct access to emerging technologies shall leverage the ATLs and on 21st century. So, without wasting much of time, I would like to invite with great honor to Sri Pawan Kumarji Patidar, in charge Atal Lab, and the great innovator, motivator to our children who motivates them to do all these innovations. I invite him to please tell us the aims and objectives of this day celebration and the achievements of our students throughout the year. Sri Patidar ji. धन्यवाद दिवांगन सर, आपने मुझे मौका दिया केंद्रीय विद्यालय खरगोन में चल रही अटल टिंकरिंग लैब की गतिविधियों के बारे में बताने के लिए, साथ ही साथ अटल टिंकरिंग लैब के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या है ये भी बताने के लिए। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा परिचय कराता हूँ अटल टिंकरिंग लैब से। अटल टिंकरिंग लैब केंद्रीय विद्यालय खरगोन में 25 जुलाई 2019 से चल रही है। 25 जुलाई 2019 को माननीय प्राचार्य महोदय द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और तब से ही निरंतर गतिविधियाँ इसमें संचालित हो रही हैं। जो मुख्य उद्देश्य है अटल टिंकरिंग लैब का, स्टेम जो साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथ्स और इनको इंजीनियरिंग, इनको साथ में लेते हुए और बच्चों में कुछ नई चीज़ें करने के लिए प्रोत्साहित करना, वो करना है। जैसे आप देख रहे हैं पिक्चर में हमारे प्राचार्य महोदय हैं और इन प्राचार्य महोदय भी बहुत विशेष उत्सुकता दिखाते हैं अटल की गतिविधियों में शामिल होने के लिए और खुद भी हमने जो शोल्डरिंग सेशन किया था उस सेशन में खुद ने भी प्रतिभागिता की है। जो हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो है अटल टिंकरिंग लैब का, टू क्रिएट वर्क स्पेस वेयर यंग माइंड्स कैन लर्न इनोवेटिव स्किल्स, स्टार्ट आइडियाज फॉर हैंड्स ऑन एक्टिविटीज एंड लर्न इन फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट। सेकंड जो है 21st सेंचुरी जो स्किल्स है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत हमें चाहिए, सबसे पहली स्किल ही हमारे अटल की यही है कि हम आत्मनिर्भर बने। तो इस स्किल का डेवलपमेंट हम यहाँ पर करते हैं थ्रू इनोवेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, डिज़ाइन थिंकिंग और इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें लेते हुए। जो थर्ड इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है वो यही है, टू बिल्ड इनोवेट सॉल्यूशंस फॉर इंडियाज यूनिक प्रॉब्लम एंड देयरबाय सपोर्ट इंडियाज एफर्ट टू ग्रो एज अ नॉलेज इकोनॉमी। आप सभी जानते हैं कि समस्याएं हमारी हैं तो इसका समाधान भी बहुत अच्छे से हम ही ढूंढ सकते हैं।
और तीसरा जो उद्देश्य हमारा ऑब्जेक्टिव है वो यही है अटल लैब का। चलिए थोड़ा सा अटल लैब के खरगोन के बारे में परिचय प्राप्त करते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे हैं जो इस गतिविधि में प्रतिभागिता अपनी दर्शा रहे हैं और उनके चेहरे पर खुशी भी हम देख सकते हैं, वो उत्साह देख सकते हैं जो वो कुछ नया करके दिखाना चाहते हैं। फोटो थोड़ा पुराना है क्योंकि अभी तो ये संभव नहीं है इस तरह की गतिविधि करना, पर तब से मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। और साथ में अटल टिंकरिंग लैब फ्रॉम ड्रीम्स इन 3D टू 3D प्रोटोटाइप्स, बहुत ही एक विशेष गतिविधि जो केंद्रीय विद्यालय खरगोन अटल टिंकरिंग लैब में संचालित होती है 3D प्रिंटिंग की, और हम लोग यहाँ पर करते हैं। हमने इस गतिविधि में सबसे पहला एक जो एक्टिविटी की थी 3D प्रिंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराया था, जिसमें बच्चों को हमने 3D मोबाइल स्टैंड डिज़ाइन करने के लिए बोला था, जिसको हम लैब में प्रिंट कर सकें और बाद में हम उसका इस्तेमाल भी कर सकें। तो बहुत सारे बच्चों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और बहुत अच्छे डिज़ाइंस हमारे पास आए हैं। साथ ही साथ स्क्रैच जो मॉड्यूल है, स्क्रैच मॉड्यूल में हमारे यहाँ के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। कोलैब कैट, कोडवार एंड पाइथन कोडिंग लैंग्वेज जो है उसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। ऑनलाइन ड्रोन की एक वर्कशॉप हुई है जिसमें हम लोगों को ये जानना है कि ड्रोन को हम असेंबल कैसे कर सकते हैं, कैसे हम उसको फ्लाई करा सकते हैं। तो हमारे यहाँ के काफ़ी सारे बच्चों ने इसमें भाग लिया। देन वर्कशॉप ऑन ऑर्डिनो प्रोग्रामिंग, ये भी बड़े अच्छे से किया है। तो ये तो कुछ ऑनलाइन वर्कशॉप्स हैं जो हमारे यहाँ के बच्चों ने की हुई है, आपको मैंने बताई। ये सिर्फ कुछ हैं, ऐसे बहुत सारी की हुई है। साथ ही साथ मैं अब आपको बताना चाहूँगा कि केंद्रीय विद्यालय खरगोन के बच्चों ने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पर टिंकर फ्रॉम होम गतिविधि के तहत कार्य किया हुआ है। जिसमें सबसे पहला है टचलेस सैनिटाइजर, जिसमें आपको टच नहीं करना और आपके हाथ सैनिटाइज हो जाएंगे। Sanitizer without touching, it is working, made by students of केंद्रीय विद्यालय खरगोन। देन एक ये वाला मॉडल बनाया है हमारे विद्यालय से तनिष्का पाटीदार। Myself Tanishka Patidar from केंद्रीय विद्यालय खरगोन, and this is my model. It's a smart toilet. As you know that Swachh Bharat Abhiyan is going on in our country, which was very influential. Today our country is much cleaner than before, but we still need a lot of changes. And my idea can help a little in those changes, as you can see. So now the point is how that person know. Tanishka Patidar of class 8, she had made wonderful project that smart toilet, whenever a public toilet is going to be used by one person, then it will be locked from inside and it will not open until the person is going to flush. So बहुत ही अच्छी एक्टिविटी जिससे पब्लिक टॉयलेट्स में सफाई बड़े अच्छे से होगी। बड़ा अच्छा प्रोटोटाइप बनाए हैं, वर्किंग मॉडल और प्रोटोटाइप उन्होंने बनाया है। बहुत अच्छी एक समस्या को एड्रेस किया है। इस बच्चे ने बनाया है टचलेस डोरबेल। आपको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं, दरवाजे पर सेंसर के सामने आप हाथ रखिए, बेल बजेगी, अंदर पता चल जाएगा कि गेट पर कोई आया हुआ है। अगली गतिविधि की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है जो बच्चों ने बना रखी है, छोटी बच्ची है, कक्षा 6 की बच्ची है, दिव्या भावसा, इन्होंने बनाया है ऑटोमेटिक फैन। इन्होंने बनाया है ऑटोमेटिक फैन। जब रात में हम लोग पंखा चलाते हैं और सो जाते हैं, कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो जो उठ नहीं सकता पलंग से, और रात में जब सर्दी होती है तो पंखे की हवा हमें ज़्यादा लगती है और ये ज़रूरत होती है कि हम पंखे की स्पीड को क्या करें, कम करें। तो इस बच्चे ने उस समस्या को एड्रेस किया है और फैन का कनेक्शन किससे किया है, ऑटोमेटेड थर्मिस्टर से किया है। सो फैन स्पीड कैन बी एडजस्टेड टू दैट थर्मिस्टर ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। मैं पूरा वीडियो आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि अगर पूरा वीडियो दिखाऊँ तो ये वीडियो बहुत लेंथ में हो जाएगा। मैं सारी वीडियोस की लिंक शेयर कर दूंगा जो आप लिंक देखकर इन वीडियो से आइडिया ले सकते हैं और देख सकते हैं, बच्चों का उत्साहवर्धन भी कर सकते हैं। इन दो बच्चों ने बनाया हीट जनरेशन गीजर सिस्टम। आपके घर में किचन में आप जब खाना पकाते हैं
तो ऊपर जो बर्नर पे से हीट मिलती है उससे का खाना पक जाता है, पर नीचे भी कुछ अमाउंट हीट रहती है जो किसी काम में नहीं आती। इन बच्चों ने उस हीट को यूज़ करके और एक सिस्टम बनाया जिससे गुनगुना पानी हम ला सकते हैं, और सर्दी वाले इलाकों में वो गुनगुना पानी हमारे लिए बहुत काम का होगा, और जिससे हम क्या कर सकते हैं, बर्तन धुल सकते हैं, कपड़े साफ कर सकते हैं, मतलब उस हीट का यूज़ भी हो और सहूलियत भी हो गई, दोनों ही चीज़ें हो गई। तो इन बच्चों ने उस समस्या को एड्रेस किया है और मॉडल बनाया है। आइए थोड़ा सा इनका मॉडल देख लेते हैं। क्योंकि अगर मैं पूरा दिखाऊंगा तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा। एक ये वे दो बच्चे हैं, हर्षित पाटीदार और प्रथम पाटीदार और हर्षित शर्मा, जिन्होंने सार्थक शर्मा और हर्षित पाटीदार, इन्होंने बनाए हैं यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग पोर्ट। एक आइडिया इन्होंने लिया अभी कुछ समय पहले, नर्मदा नदी में बोट पलट गई थी जिसमें कुछ लोगों की डेथ हो गई थी डूबने की वजह से। उन्होंने उस समस्या को देखा और उससे प्रेरित होकर कहें कि उसको समस्या को देखते हुए उसका समाधान निकाला है। और समाधान ये निकाला है कि उन्होंने एक यूट्यूब बनाया है, जो ट्यूब को आप पानी में फेंक दीजिए और आप अपने मोबाइल से उसको गाइड करिए, और वो जो बंदा कोई डूब रहा है उसके पास पहुँच के उसको अपने साथ ड्रैग करके और किनारे पर या बोट के पास, लाइफ सेविंग बोट के पास ले आएगा। तो बहुत ही अच्छा एक वीडियो, एक प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया है। Project name is YouTube, a life saving book. Then we use CPM. ये एक उनका वर्किंग मॉडल है जो आपको वर्क करते हुए दिखाई दे रहा है, जिसको आप मोबाइल के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। तो बहुत ही क्रांतिकारी विचार बच्चों ने लिए हैं और उनको मूर्त रूप दिया है। इन दो बच्चों ने बनाया है स्मार्ट डस्टबिन। आप अगर डस्टबिन में डालने जाते हैं कचरा, तो आप देखते हैं डस्टबिन खुला रहता है, इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। अगर आप कैप लगा देते हैं और आपके दोनों हाथ में कचरा है तो कैप ओपन कौन करेगा। इस समस्या को देखते हुए उन्होंने ये एक निकाला है, डस्टबिन बनाया है, जिसमें आपको डस्टबिन को हाथ नहीं लगाना है, सिर्फ उसके आगे आप कचरा रखिए, डस्टबिन ओपन होगा, कचरा डाल दीजिए, डस्टबिन वापस अपने आप बंद हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट इन बच्चों ने बनाया है, स्मार्ट डस्टबिन नाम दिया है इन्होंने। अगला है क्रैश कलेक्टर। दिव्या भवसार कक्षा 10वीं की बच्ची है, इन्होंने बनाया है। इसमें इन्होंने बनाया है कि जो तालाब है, नदी है, वहाँ पर जो कचरा है, पॉलीथीन है, उसको कलेक्ट कैसे करें। तो ये कंटिन्यूस सोलर एनर्जी से चलता रहेगा और कंटिन्यूस तालाब और नदी की सफाई करता रहेगा। ऐसा एक प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया है। बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छे से टिंकरिंग का इस्तेमाल किया है। इसके बाद इन दो बच्चों ने बनाए हैं गार्बेज सेपरेटर। आपने गार्बेज हम लोग देखते हैं जब नगर पालिका, नगर निगम की कचरा गाड़ी आती है, उसमें कंपार्टमेंट में अलग अलग कचरा डालना है, लोग ज़्यादातर डालते नहीं हैं, ध्यान नहीं रखते हैं। समस्या से समाधान निकाला है। एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको गीला या सूखा कचरा डालना है, ऑटोमेटिकली इट विल डिटेक्ट व्हिच वन इज ड्राई वन एंड व्हिच इज वेट वन, अकॉर्डिंगली इट विल बी ड्रॉप्ड इनटू दैट कंपार्टमेंट। Now let's focus के बारे में। Like this, कितना बढ़िया से ये वर्क कर रहा है। Now let's add this. सेंसर्स का इस्तेमाल बनाया है। As you can see, it is bought this from YouTube Rabbit. मैं आपको पूरा वीडियो नहीं दिखा पा रहा हूँ, क्षमा चाहूँगा। मैं लिंक इसके साथ अटैच कर दूंगा, आप देख पाएंगे। और ये 3 छात्र आए हैं। Namaste everyone, we are David and we have made ट्विंकलिंग ट्रिपलेट्स, जैसा नाम है, बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। और उन्होंने क्या बनाया है, मित्र बनाया है, जो क्या करेगा, आपको प्रयोगशाला में मदद करेगा। बहुत सारे उपकरण कैमरा का हुआ है, तो बताने में मदद करेगा।
हो जाता है कि ये वही एक्सपेरिमेंट है जिसको आप सर्च कर रहे थे। इनमें इस प्रोजेक्ट में बच्चों ने आगे भी एक्सपेंशन सोच रखा है और आगे हम इसको कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे और अच्छे से प्रयोगशाला मित्र हमारी प्रयोगशाला में मदद कर सकता है। अगला जो बनाया है ये भी बहुत ही अच्छा और यूनिक आइडिया है, एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड है। ये कक्षा 7वीं की बच्ची है प्राची पाटीदार, उन्होंने बनाया है और इसमें इन्होंने बनाया है किसान उन्नति ऐप। इस ऐप में वो बताना चाह रहे हैं कि कैसे किसान को समस्या होती है मजदूरों की कि कितने चाहिए आएंगे। और गुरजीत भाटिया, दो बच्चे हैं, प्राची पाटीदार, गुरजीत भाटिया, उन्होंने इस ऐप को बनाया। एक मैं ओवरव्यू दे देता हूँ क्योंकि अगर ये इनका वीडियो मैं आपको बताता हूँ तो समय थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। इन्होंने अपने ऐप में ये बताया है कि किसान को किससे मजदूर चाहिए और किस काम के लिए चाहिए, वो मोबाइल के थ्रू अपनी रिक्वायरमेंट एक ऐप पे डाल दे। उसी ऐप पर जो मजदूर हैं वो इस रिक्वायरमेंट को देख पाएंगे और अगर वो इंटरेस्टेड है तो वो अपनी एक्सेप्टेंस उस ऐप पर दे दें। किसान को भी कंफर्मेशन हो जाएगा कि ये मजदूर मेरे घर आएंगे कल और मजदूर को भी काम मिल जाएगा। इससे रोजगार मिलने में भी आसानी होगी और इधर उधर न किसान को परेशान होना पड़ेगा न मजदूर को परेशान होना पड़ेगा। इस तरह से ये समस्या का समाधान इस ऐप के थ्रू उन्होंने निकाला है। ये पूरा प्लेजमो प्लेटफॉर्म पर उन्होंने डिज़ाइन किया है क्योंकि प्लेजमो की ही कुछ ट्रेनिंग वर्कशॉप्स अटल नीति आयोग की अटल इनोवेशन मिशन के तहत की गई थी और उन्होंने उस वर्कशॉप को अटेंड किया था। तो ये बड़ा मज़ेदार है। इस बच्ची ने बहुत ही अच्छा विदाउट इलेक्ट्रिसिटी फ्रिज कैसे बनाए ये बताया है, तो बहुत ही अच्छा बताया है। कक्षा 8वीं की विद्यार्थी है और बहुत ही अच्छा है कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के आप अपनी सब्जी कैसे ताज़ा रख सकते हैं। इस तरह से उन्होंने लिया है, बना लिया है। उस पर प्रेशर कुकर रिंग में सूती धागे लगा के और किया है जो कि सरफेस टेंशन जो हम लोग क्लास 11th में पढ़ते हैं, अगर हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो हम इस कंसेप्ट को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसको यूज़ करते हुए बड़ा अच्छा मॉडल निकाला है जो हमारे एंशिएंट टेक्नोलॉजी है उसी को इन्होंने रिवाइव किया है। तो बहुत ही बढ़िया मॉडल एक बनाया है, प्रोजेक्ट बनाया है। साथ में इन बच्चों ने बनाया हुआ है बहुत ही अच्छा स्मार्ट डोर है, स्मार्ट लॉक है जिसमें आप अगर आपके मोबाइल से आप अपने घर के दरवाजे लॉक अनलॉक कर सकते हैं। बाहर से अगर कोई आया वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका जो पिन है वो आपके ही पास है। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति जो उठकर दरवाजे के पास नहीं जा सकते हैं तो उसके लिए ये लॉक उन व्यक्तियों के लिए ये लॉक बहुत ही काम का है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये कार्य कर रहा है। Thank you, Patidar sir. Really, we are very happy, and people those who are watching us live on the video must be happy to listen the innovations of our children and achievements. Thank you very much once again, sir. Now, I would like to request Honorable Principal sir to please come here and bless the children and encourage them to go ahead with their innovations. Principal sir, please. धन्यवाद देवांगन सर कि आपने मुझे ये मौका दिया। सबसे पहले मैं श्री पाटीदार जी, सीनियर साइंटिस्ट, इसरो अहमदाबाद, श्री संतोष जी, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, पीजी कॉलेज खरगोन, और हमारी अटल टिंकरिंग लैब केंद्रीय विद्यालय खरगोन के इंचार्ज श्री पवन पाटीदार जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही स्वागत भी करता हूं कि उन्होंने आज मुझे अटल टिंकरिंग कम्युनिटी डे के दिन बोलने के लिए एक वक्ता के रूप में चुना। साथियों, आप सभी को पता होगा कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक सपना देखा था कि हमारे बच्चे बाकी अन्य देशों की तरह इनोवेशन या इनोवेटिव आइडिया को सोचें और अपनी उस सोच को धरातल पर कैसे उतारें ताकि उनका ये इनोवेशन या इनोवेटिव आइडिया न केवल उनके बल्कि हमारे पूरे समाज के काम आ पाए। तो इसी कड़ी में
नीति आयोग ने अटल टिंकरिंग डे ड्राइव 14 अप्रैल को नेशन वाइड लॉन्च किया है। अब आप सोचते होंगे कि नीति आयोग ने भी आज का ही दिन क्यों चुना, कोई और दूसरा दिन भी चुन सकते थे वो लोग, लेकिन क्योंकि 14 अप्रैल बाबा साहब का जन्मदिन है और बाबा साहब ने भी एक सपना देखा था कि हमारे इस देश में जितने भी लोग रहते हैं उन सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी अपने जीवन में समान अवसर मिलने चाहिए। शुरुआत में जब अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना हुई है तो ये कुछ ही स्कूलों को इनका रिसोर्सेस दिया गया, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि हमारे जितने भी विद्यालय हैं या फिर जितने भी छात्र हैं जो पढ़ते हैं उन सभी को इन लैब्स का रिसोर्स का एक्सेस नहीं मिल पाया, या अभी तक वो एक तरह से बोल सकते हैं कि वो वंचित ही रह रहे हैं। उनको ये भी पता नहीं है कि हमारी इन लैब्स में होता क्या है या फिर ये क्यों बनाई गई है, हम इनसे किस तरह से जुड़ सकते हैं अगर हमारे पास वो संसाधन नहीं है तो इसलिए नेशन वाइड एक जागरूकता और इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रदान करने के लिए आज के दिन नीति आयोग ने ये अटल टिंकरिंग कम्युनिटी डे ड्राइव लॉन्च किया है। इसका सीधा सा एक ही उद्देश्य है कि हमारे बच्चे भी सपना देखें, इनोवेटिव सपना, और उस सपने को साकार करने के लिए हमारी अटल टिंकरिंग लैब या हमारे संसाधन किस तरह से उपयोगी हो सकते हैं या उन इनोवेटिव आइडिया को धरातल पर हम कैसे लेके आए। इसी सोच के साथ ये रिसोर्सेस जो हमारी सरकार है वो अवेलेबल करवा रही है। हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम अधिकतर इसी बात पे कायम रहते हैं कि जो चल रहा है बस वो ठीक उसी तरह चलता रहे, यानी हमको कहीं भी कोई एफर्ट्स नहीं करना पड़े, क्योंकि मैक्सिमम लोग यही सोचते हैं जब बिना एफर्ट्स के ये चीजें मिल ही रही हैं तो हम उसमें नया जोड़ने का क्यों इतने एफर्ट्स करें। क्योंकि जब तक हम किसी चीज के अंदर जो चीज पहले चल रही थी, जैसे अगर हम सिंपल से एग्जांपल लें तो पहले के जमाने में भी सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे, लेकिन वहां पर मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो था वो बिल्कुल डिफरेंट था। पुराने जमाने में जब इतना स्ट्रक्चरल पॉसिबल नहीं था तब लोग शायद कबूतरों को मैसेज के रूप में भेजते थे। फिर जब हमारी सोसाइटी ऑर्गेनाइज हुई तो फिर पोस्टमैन की आवश्यकता पड़ी, डाकघर बने हमारे, लेकिन उसमें भी काफी टाइम लगता था। अगर हमको कोई मैसेज भेजना है तो उसके लिए हमको बहुत सा वेट करना पड़ता था, यानी बहुत टाइम में वो मैसेज आएगा, फिर हम उसका जवाब लिखेंगे। तो हो सकता है कि जब उस न्यूज की कोई नीड हो, बहुत अर्जेंसी हो, तो तब तक वो मिले, तब तक वो किसी काम का भी नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इस तरह की जो समस्याएं हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं, महसूस करते हैं, अनुभव भी करते हैं, अपने इनोवेटिव आइडिया से धीरे धीरे वो टेलीफोन पर चेंज हुआ। फिर टेलीफोन जब एक्सचेंज स्टार्ट हुआ तब उसके भी अपने कुछ लिमिटेशंस थी, हम लोग डायरेक्ट किसी से बात नहीं कर सकते थे, ठीक है, और हर किसी के पास में वो इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, तो वो भी इतना ज्यादा लोकप्रिय नहीं हुआ। लेकिन हमारी जो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है वो काफी हद तक उन्होंने सॉल्व की, ठीक है। और आज के टाइम पे अगर हम सीधे आए, उसके बाद में बीच में कड़ी में जो अर्जेंसी वाली बात थी, मोबाइल का चलन स्टार्ट हुआ। मोबाइल की टेक्नोलॉजी भी शुरू में काफी महंगी थी, हर कोई लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे, ठीक है। फिर उसमें केवल कॉल की फैसिलिटी थी, मैसेज की फैसिलिटी नहीं थी। तो वो मैसेज यानी कि तुरंत प्रोवाइड करने के लिए कोई भी सूचना, पेजर आया, ठीक है। तो पेजर का लोग यूज करते थे, लेकिन पेजर का जो हम यूज करते हैं उसमें भी काफी प्रॉब्लम्स थी। यानी किसी को अगर हमको मैसेज देना भी है
तो बीच में इंटरमीडिएटर को पहले आप फोन करके आपको बताना पड़ेगा कि भाई उस आदमी को इस नंबर पे हमको ये मैसेज प्रोवाइड करना है, तो फिर वो उसको प्रोवाइड करते थे। लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी या हम में से ही किसी एक ने और ज्यादा इनोवेटिव आइडिया सोचा कि कैसे इस महंगी टेक्नोलॉजी को हम और सस्ती करें। तो उसका रिजल्ट आप और हम सब आप लोग देख ही रहे हैं कि हम आज मोबाइल के द्वारा न केवल बात कर सकते हैं बल्कि वीडियो कॉल के थ्रू ये आमने सामने की बात भी उसमें होती है। अगर तुरंत मैसेज भेजना हो तो मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, उसमें इंटरनेट का एक्सेस जैसे ही मिला तो आज दुनिया बहुत छोटी हो गई है, हम कहीं की इंफॉर्मेशन कहीं भी देख सकते हैं। फिर उसमें और इनोवेटिव आइडिया है तो आज हमारे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस में बैंक हैं ये सब आज हमारे मोबाइल में समा गए हैं। तो ये सब हो पाया, क्यों हो पाया? क्योंकि हम में से किसी एक ने साहस किया और एक लीक से हटकर कुछ नया सोचा और उस नई सोच को धरातल पर लेके आया, जिसका फायदा ना केवल उनको हुआ बल्कि हमारे पूरे समाज को हुआ और हम सब उनका एक तरह से कंज्यूमर बन के उपयोग कर रहे हैं। तो ठीक इसी तरह की सोच जो है हर क्षेत्र में अभी बहुत से इनोवेटिव आइडियाज आना बाकी हैं। लास्ट ईयर से पहले शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि हम जो एक कॉन्सेप्ट है ऑनलाइन क्लासेस का, कि घर पे रह के भी हम लोग बच्चों को किस तरह से पढ़ा पाएंगे। रिसोर्सेज उस समय थे लेकिन शायद वो इतने ज्यादा अपडेटेड नहीं थे और हम लोग भी उनके लिए अपडेट नहीं थे। लेकिन जैसे ही कोरोना आया, जब सब लोगों को अपने घरों के अंदर कैद रहना पड़ा, तो वो जो चीज जिसके बारे में सोच नहीं रहे थे, ना केवल लोगों ने सोचा बल्कि उसको एक सफलतापूर्वक जो है अप्लाई भी किया। उसका फायदा ये हुआ कि जहां हम ये सोच रहे थे कि बच्चे अगर स्कूल नहीं आएंगे उनका इतना बड़ा एकेडमिक लॉस होगा, ये होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन ये जनरली कोई भी इन्वेंशन होता है, कोई भी इनोवेटिव आइडिया आते हैं तो ऐसा लगता है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ठीक है, लेकिन वो टाइम आए उससे पहले जो भी कोई सोचता है, क्योंकि आपने ये सुना भी होगा कि रेस केवल वही जीतता है जो पहले दौड़ता है। ठीक है, बाद में जो दौड़ रहे हैं ठीक है वो अपने मुकाम पर पहुंच सकते हैं लेकिन उनको हम विनर नहीं मान सकते। और आज एक इनोवेटिव आइडिया ना केवल वो समाज में काम आ सकता है बल्कि जो सोच रहा है उसको भी फाइनेंशियली बहुत सुदृढ़ कर सकता है, क्योंकि जो पहले सोचता है ब्रांड केवल उसी का बनता है। जैसे हमारा आईफोन, क्योंकि जब हम कीपैड यूज करते थे तब किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन स्टीव जॉब्स ने इसके बारे में सोचा काफी टाइम पहले और अपनी टीम को उन्होंने इस तरह से डायरेक्ट भी किया कि मेरे को केवल एक इस तरह का गैजेट चाहिए, मोबाइल फोन चाहिए जिसमें केवल एक बटन होगा। ठीक है, लेकिन लोग उनके इस इनोवेटिव आइडिया को सोच के जो है खुश नहीं थे, वो भी सोच रहे थे ये भी पागल है बिल्कुल, ऐसे कैसे हो सकता है कि पूरे मोबाइल जो है केवल एक फोन से हम उसको ऑपरेट कर पाए। तो तब शायद टच स्क्रीन का भी किसी ने कॉन्सेप्ट सोचा नहीं था, लेकिन क्योंकि उनको अपने उस इनोवेटिव आइडिया पर इतना विश्वास था और उस पर कायम रहे और उसी का रिजल्ट था कि उन्होंने आईफोन का इन्वेंशन किया। और आज आप और हम सभी जानते हैं कि मोबाइल फोन मार्केट में बहुत सारे हैं, लेकिन जो आईफोन की ब्रांडिंग है वो अपने आप में एक अलग ही है। हर कोई चाहता है कि उसके पास आईफोन हो। उसके लिए लोग सुबह सुबह यानी रात से ही जब वो इसकी सेल स्टार्ट होती है तो लाइन में खड़े हो जाते हैं। तो क्रेज भी हम लोग देख सकते हैं। तो ठीक इसी तरह की, क्योंकि ये सब टेक्नोलॉजी से ड्राइवन है और आज की जो यंग जनरेशन है वो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस टेक्नोलॉजी से है। इसलिए जैसे ही नई टेक्नोलॉजी जाती है पुराने को वो तुरंत डस्टबिन में डाल देते हैं। तो इसका सीधा सिंपल है कि अगर हम देखेंगे कि ऑनलाइन साइट्स पर हर 1-2 महीने के बाद में जब इतनी ऑनलाइन सेल होती है तो इतने मोबाइल फोन्स बार बार में बिकते हैं, क्योंकि न्यू जनरेशन को क्या है कि नया कुछ चाहिए उसके लिए, और जो उसमें नया इनोवेटिव आइडिया डालता है लोग उसी की तरफ हो जाते हैं।
तो हमारी सबसे बड़ी जो कमजोरी है वो यही है कि हम इनोवेशन के बारे में सोचते नहीं है। अगर हम टीचिंग में भी लें तो उसमें भी बहुत सारे इनोवेशन हो सकते हैं कि हम जो भी टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में जो हमारा लर्निंग प्रोसेस होता है वो बिना फिजिकली रूप से प्रेजेंट हुए उसको हम ठीक वैसे कैसे बना पाए, कैसे हम उन बच्चों को जो हम पढ़ा रहे हैं उसका एवोल्यूशन कर पाए, ये चेक कर पाए कि हाँ हमारे बच्चे जो हैं उसी रफ्तार से या उसी मोड के अंदर या उसी मेंटल लेवल में हमारे नॉलेज को गेन कर रहे हैं। वो तो ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन शुरुआत में जब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई तब सभी लोग इसके इतने हैबिचुअल नहीं थे, सभी लोगों ने उसके पहले मजाक में लिया, लेकिन जब बाद में मालूम चला कि नहीं अब तो यही चलना है तो फिर सब उसके लिए सीरियस हो गए। जहां बच्चे पहले बहुत ही कम आते थे उसके बाद में मालूम चला कि मैक्सिमम क्लास की जो स्ट्रेंथ है वो पूरी प्रेजेंट होने लगी, यानी हमारी डे टू डे जो है डे बाय डे बच्चों की अटेंडेंस भी बढ़ने लगी। और अब तो इतना ज्यादा उसका एक्सपीरियंस हो गया है कि क्लास 1 और 2 वाले बच्चे भी आराम से अपने मोबाइल को ऑपरेट कर लेते हैं। अगर उनको पता है कि लिंक आएगा तो उसको कैसे एक्सेस करना है, अगर गूगल फॉर्म के थ्रू उनका कोई एग्जाम लिया जाएगा तो वो एग्जाम कैसे देना है, उसके बाद में एक फीडबैक के रूप में, क्योंकि हर बच्चे को ये क्यूरियोसिटी रहती है कि उसने जो एग्जाम दिया तो उसके मार्क्स कितने आए। ठीक है, जब हम फिजिकल फॉर्म में देते हैं तो उसमें काफी टाइम लगता है, लेकिन गूगल फॉर्म में क्या है, बच्चों को पता है तो जैसे वो फाइनल सबमिट करते हैं तो तुरंत अपना स्कोर देख लेते हैं। तो ये भी एक तरह का इनोवेटिव आइडिया है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो हमारे पास पहले से था, और जो ऑनलाइन ऑफिस है जिसको गूगल शीट्स यानी एक्सेल का नाम गूगल शीट हो जाता है, उसका सही तरह से उपयोग हम कैसे कर सकते हैं वो केवल हम लोगों ने इसी कोरोना काल में देखा है। उससे पहले नहीं तो सभी लोग अपना स्टोरेज करना डॉक्यूमेंट का तो या तो पेन ड्राइव ही यूज करते थे, तो जहां भी जाएंगे वो अपना पेन ड्राइव लेके जाते थे। लेकिन आज की तारीख में शायद पेन ड्राइव का भी सेल बहुत कम हो गया क्योंकि सब ऑनलाइन हो गया, और इसका सबसे बड़ा श्रेय इंटरनेट को भी जाता है, क्योंकि आज जो हमारे पास हमारी पॉकेट के हिसाब से अवेलेबल है, ये 4-5 साल पहले नहीं था। ठीक है, तब इंटरनेट का यूज करना काफी महंगा था। ठीक है, और इंटरनेट की वजह से आज हम YouTube हर कोई एक्सेस कर सकता है, तो YouTube पर भी बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज हैं, वो भी उनको देख सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि हम जो भी सोचें, ठीक है, उस सोच में एक नया इनोवेशन है, क्योंकि वही इनोवेशन हमको फ्यूचर की तरफ लेके जाएगी। और अगर हमारे सोच में वो इनोवेटिव आइडियाज नहीं होंगे, इनोवेशन नहीं होंगे, या हम जो सोच रहे थे वैसे ही सोचते रहेंगे या जो कर रहे थे वैसा ही करते रहेंगे, तो शायद हम आने वाली जनरेशन को कुछ भी नहीं दे पाएंगे। क्योंकि आज हम सब ये देख रहे हैं वो इसलिए देख पा रहे हैं कि किसी ने ये सोचा। तो इसी माध्यम के लिए या इसी कड़ी में हमारी अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की गई है, ताकि बच्चे कुछ नया सोचे और उस सोच को हम धरातल पर कैसे लेके आए, उसी के लिए हमारे अटल टिंकरिंग लैब है। तो जितने भी बच्चे जो शायद अभी तक जिनको पता भी नहीं था कि अटल टिंकरिंग लैब क्या होती है, उसमें किस तरह से बच्चे काम करते हैं, और केंद्रीय विद्यालय खरगोन में जो अटल टिंकरिंग लैब जिसको शायद लास्ट ईयर से चल रही है हमारी, काफी इनोवेटिव बच्चों ने आइडिया यूज करके अपने कुछ प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं, जो आप लोग शायद अभी जो हमारा ये ड्राइव चल रहा है उसमें आप देखेंगे भी कि बच्चों ने कैसे अपना इनोवेशन यूज किया है। तो आप लोग भी उस तरह से सोच सकते हैं। हो सकता है कि आपके पास अटल टिंकरिंग लैब नहीं हो, लेकिन आसपास जितने भी आपके पास संसाधन है उनको यूज करके एक अपने इनोवेटिव आइडिया की खाका तैयार कर सकते हैं, एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, और वो आइडिया किसी के साथ में शेयर करके हो सकता है उसको धरातल पर भी आप लोग लेके आ पाए। तो इसी सोच के साथ कि आप लोग आने वाले समय में कम से कम कुछ नया सोचने का जोखिम जिसको बोल सकते हैं, या उसका ऐसे बोले साहस करेंगे,
ऐसी मैं आशा करता हूं, क्योंकि आपका ये एक नया इनोवेटिव आइडिया हमारे आने वाले फ्यूचर को और बेहतर बना सकता है। धन्यवाद। जय हिंद।